दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान बाहिमी एहतराम की खारजा पॉलिसी पर कारबंद है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में दुनिया को बावर करा दिया कि पाकिस्तान अब तक 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुका और आज भी सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है, जिसमें फितना हिंदुस्तान समेत कलअदम तहरीके तालिबान, BLA और मजीद ग्रुप शामिल है। ये तंजीमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अबूरी अफगान इंतजामिया को मौसर इकदाम करना होंगे। दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम की खारजा पॉलिसी पर कारबंद है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में दुनिया को बावर करा दिया कि पाकिस्तान अब तक 90,000 जानों की कुर्बानी दे चुका और आज भी सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है, जिसमें फितना हिंदुस्तान समेत कलअदम तहरीके तालिबान, BLA और मजीद ग्रुप शामिल हैं। ये तंजीमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अबूरी अफगान इंतजामिया को मौसर इक़दाम करना होंगे। दुनिया भर में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके। पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम की खारजा पॉलिसी पर कारबंद है। बिल्कुल। 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people and also suffered economic loss of $150 billion. Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any. पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पूरी दुनिया ने मई में भारत का अंजाम देख लिया। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में बताया, भारतीय जारहियत का आलमी कवानीन के तहत मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के साथ तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। बोले, जंग पाकिस्तान ने जीत ली, अब क़याम अमन को जीतना है। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात हल करने के लिए पाकिस्तान जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात करने पर तैयार है। India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump, and therefore Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. We have won the war, and now we seek to win peace. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीन और कश्मीरी अवाम की आवाज़ बन गए। मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि गजा में होने वाला जुल्म आलमी नाकामी है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी खुली दहशतगर्दी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और दुनिया के तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर जोर। अरब और मुस्लिम ममालिक से मुशावरत पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। Plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice, Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed unspeakable terror upon women and children in a manner we have not witnessed in annals of history. We must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. The smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas. We cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. आगे बढ़ें और बात करें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम लीडर हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पहले ओवल ऑफिस में गुफ्तगू, कहा हमारे पास अजीम रहनुमा आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल, मैं लेट हो गया हूँ, वो ओवल ऑफिस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं, उनसे मिलकर खुशी होगी। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कुर्बतें, ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया। कहा अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कुर्बतें, ताल्लुकात के नए बाब का आगाज हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया। कहा कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी कंपनीज को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। हम जंग जीत चुके, अब अमन चाहते हैं। जनरल असम्बली में खारजा पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता वाज़े कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से हौसला अफजा बातें की। अपनी कंपनियों को पाकिस्तान में मौक़े का जायजा लेने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुलाकात में पाक भारत जंग रुकवाने पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। समा के सवाल पर शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्होंने भारतीय सहाफ़ी को दहशतगर्दी के हवाले से सवाल पर जवाब दिया कि हम पाकिस्तान में इंतशार की भारतीय साजिशों को भी शिकस्त दे रहे हैं। ने कहा कि वी हैव वन द वॉर बट नाउ वी वांट टू विन पीस। तो ये तो कार्डिनल पिलर हो गया ना फॉरेन पॉलिसी। अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने
पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर, सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएं और जाके वहाँ पर सरमायाकारी के जो मौके हैं उनको बात करें। और मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप का एक मरतबा फिर दिली शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने खत्ते में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग बंद कराने में कलीदी किरदार अदा किया। आपने आज एक बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था इंडियन जर्नलिस्ट को कि वी आर काउंटरिंग इंडियाज टेररिज्म। वी आर डिफीटिंग देम, दीज क्रॉस बॉर्डर एजेंट्स, they are trying to create trouble in Pakistan and foreign money. We are defeating them. जबकि दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के अरकान का तकरीर का बॉयकॉट। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हॉल खाली हो गया। नेतन्याहू परेशान, चेहरे पर हवाइयां। इसराइली वजीर आजम हॉल खाली देखकर हक्का बक्का रह गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा में जंग जारी रखने का ऐलान किया और ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा भी पेश किया। Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. उधर गजा सिटी में इजराइल की पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 24 घंटे में 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। 14 की तादाद 65,549 हो गई। यमन में गजा के अवाम से एकजहती के लिए एहतजाज, हजारों अफराद शरीक हुए। फलस्तीनियों के लिए मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान किया। सदर ट्रंप कहते हैं गजा पर मुआहिदा होता दिखाई दे रहा है। इजरायली अरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहिदा बहुत करीब है। हम गजा का मामला खत्म करना चाहते हैं। इजराइल और हमास के अरगमालियों को वापस लाना चाहते हैं। मुआहिदा जल्द मुमकिन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई, हजारों देहात नक्शे से मिट गए, 1000 से ज्यादा जानें गईं। पाकिस्तान दुनिया भर में कार्बन के इखराज में सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा डालता है, लेकिन फिर भी हमें माहौलियाती तब्दीली की तबाहकारियां मुसलसल सहनी पड़ रही हैं। 2022 Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock and property washed away. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused due to climate change. Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. And then we are told to borrow loans and add on to our debt, huge debt pillars we have over the period of time. This is not fairness. I think borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah.